الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، نور ایمان میں آج آپ ہائیلینڈز کے خانقاہ اشرفیہ اور غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس اولیاء کرام کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. علماء و ائمہ کا جمع غفیر رہا، آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی شرکت رہی. مجلس سعید کا آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا اور افتخار تلاوت حاصل کیے قاری شیخ یوسف دامت برکاتہم عالیہ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق خالقنا ورازقنا العظيم बाद अज़ां कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल किए जनाब रिज़ा बहादुर और हम नवा ने। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला
خلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم तसव्वुफ़ अपने आप में बहुत वसी है। जनाब नदीम दुबूरी साहब ने बहुत ही मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में तसव्वुफ़ के बारे में ये चंद बातें बताईं। Il est important qu'il nous comprend nous-mêmes. Il est important qu'il nous comprend nous-mêmes, qu'il nous comprend qui sont là nous était et qui nous objectif là sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il permet nos objectifs bien clairs. Allah subhanahu wa ta'ala il permet nous l'objectif clair. Nous l'objectif n'est pas travail, nous l'objectif n'est pas marier des enfants, nous l'objectif n'est pas entertainment, mais nous l'objectif c'est faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous clairement bon pas fin créer eux excepté pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin connaître nous-mêmes. Nous besoin connaître nous-mêmes. De quelle façon nous besoin connaître nous-mêmes? Connaître qui nous l'écho et n'a capacité de faire trois kitsueuses. Première kitsueuse, c'est nous avons un membre l'écho, nous avons un membre l'écho, nous avons l'armée, les pieds, la bouche, les oreilles, pour qui justement nous capables de faire kitsueuse. Alors sa kitsueuse là, sa discipline là, une discipline qui est régulée de sa kitsueuse là, nous appelle ça fikr. Deuxième kitsueuse qui nous capable de faire, c'est nous avons la capacité de penser. Nous avons la capacité de penser, alors quand nous avons la capacité de penser, Allah subhanahu wa ta'ala fait réguler de ça aussi et nous fin classifier li comment aqida. Veut dire qui croyance bizarre en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croyance bizarre en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui croyance bizarre en le ban malaika, le taqdir, tout ça banza fait là. Troisième chose qui nous capable faire, c'est nous capable ressentir quelque chose. Nous avons l'émotion qui est associée. Nous avons l'émotion qui est associée avec nous. Veut dire ça qui chose là, Allah nous fin classifier li comment tasawwuf. Nous fin classifier li comment tasawwuf et que celui qui maîtrise ça qui chose là, nous appelle li un soufi. Maintenant, on est capable de dire comment pour faire pour différencier de ça qui chose là. Pour prendre l'exemple dans la namaz même. Quand nous peut dire Allahu Akbar
fait que nous lève nous l'amène certaines terres, tous nos oreilles. Aqida pour nous croit, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de ce qu'il nous peut faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît, nous peut faire namaz pour lui. Connaît qui est un serrab, connaît qui zis Allah subhanahu wa ta'ala il mérite adoration. Tasawwuf pour nous acheter oublier tout. Oublier tout dans une lame, comme nous disons nous lève de lame, une lame met dunya, une lame met akhirat. Quand tu lèves de lame, puis dans non qui est important, c'est zis Allah subhanahu wa ta'ala qui est important. Maintenant, un djiboun est capable de poser une question qui est légitime, c'est-à-dire qui fait nous besoin un pyromouchid. Qui fait besoin un pyromouchid? Parce que justement, mon fait que dire celui qui maîtrise fiqh n'a pas lien fakri, lui pour réguler qui banze affaires, les boudjanou qui affaires nous capable faire avec nous membres l'éco. Celui qui étudie aqida bien, les boudjanou qui nous capable croire, qui nous besoin croire, qui nous pas besoin croire. Celui qui ne fait une maîtrise tasawwuf, qui fait nous besoin dans nous la vie. Parce que, première question, il y a une question qui est légitime. Un djiboun besoin réaliser qui question besoin continue poser. Pas archoum, une question qui finalement nous fait banérir. Qui fait nous besoin de pyromouchid? C'est parce que ça pyromouchid là, nous prenons l'exemple, nous expliquons pas l'exemple plus facile, et nous terminons là même, Inch'Allah. Nous prenons l'exemple de Ban Ashrafi. Au pyromouchid, parmi nous, Makhdoum Ashraf Simnani radiallahu ta'ala. Makhdoum Ashraf Simnani radiallahu ta'ala, parmi nous, Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala. Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala, parmi nous, Ghaussi Azam radiallahu ta'ala. Nous ban grand tipédienne kitseuse, nous ban grand tipédienne parole qui est bien jolie. Je peux dire, Ghaussi Azam milgaye to Mustafa milgaye. Ghaussi Azam milgaye to Mustafa milgaye, Mustafa milgaye to Khuda milgaye. Quand nous sortis, quand nous allons, nous avons un pyromouchid qui est kamil. Les temps pas permettent moi rentrer dans les détails qui a été pyromouchid nous avons. Mais un pyromouchid qui est kamil, qui amène nous que ça, depuis que ça y amène nous, est-ce que ça y amène nous? Y amène nous que Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit que ça tigit qui nous finit apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq pour qu'il nous mette en pratique. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए जनाब सैयद ज़ीशान बुखारी साहब ने ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की है। इस अकीदत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब ये है कि जहाँ भी मोहम्मद का नाम आ जाए तो सभी लबों पे दुरूदो सलाम आ जाए। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। इश्क़े सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में के बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा हुसैन बचाया, सारा कुंबा शहीद कराया। चढ़ने से कुरान सुनाया, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिलके जरा कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, सैयदा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के। फूल महके हैं मेरे चमन के। ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। Alhamdulillah, nous pouvons assister au Ours Maqsad, Ours Bi. C'est nous célébrer Ours pour rappel et pour mazin ban awliya Allah,
c'est une personnalité qui finit toute la vie pour propager l'islam et chaque moment qu'ils ont fini vivre de l'obéissance à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les bons qui nous connaissent, chaque wali, chaque moment qu'ils vivent, ils dans ita'at Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. À aucun moment, il n'est pas en dehors obéissance à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sa façon qu'ils ont fini toute la vie, pour sa raison-là, Allah Rabbul Alamin ordonne dans le Coran Majid ou le Furqan Hamid, Oban qui n'a pas iman, après qu'ils ont pratiqué le din, aussi important que toujours reste attaché avec ban awliya Allah. Pour quelle raison? Qui fait le Coran fait mettre autant l'enfance et fait ordonne nous pour nous rester attachés avec ban awliya Allah. Aussi comprend Allah donne nous l'écho, c'est l'école qui calte jolie liété. Qui calte en bonne santé, mais si dans sa l'école a peine à roue, peine à la vie, personne ne peut pas dire. Même papa, même maman, même frère, même ses mêmes camarades d'estime, quand roue une sortie depuis dans sa l'école, c'est plus vite qu'il est capable d'amener dans Kabrastan. Mais quand il a roue dans sa l'école, même qui sa l'école, il n'est pas joli, il n'est pas en bonne santé, il est là pour les autres, il est maigre, il coûte, n'importe quoi. Ils vivent ensemble avec nous. L'importance à l'école, ça roule lui donner. Ça l'école qui gagne ça l'importance là à travers sa roue. Aujourd'hui, pour ça l'école qui continue de nous mettre l'emphase, pour nous garder ça l'école en bonne santé, ne pas connaître combien de temps il vous vivre. Mais ça roue qui n'est simplement comme un invité, comme un mehman dans l'école, parce qu'après ça, il peut sortir, il peut transférer, il peut aller dans l'autre monde. Pour ça roue là, pour garder en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes réfléchis, qui va une préparation, qui va quelque chose que nous pouvons faire. Il ne faudrait pas oublier, comment l'école est malade, comme ça même, roue aussi malade. L'école, sans aucune maladie, on comprend les biens, les pas poils ensemble avec nous dans nos cabars. On a malade de cœur dans le cabar, pas pour un malade de cœur. On a tension dans le cabar, pas pour un malade tension. On a diabète dans le cabar, pas pour un diabète. Mais par contre, une maladie qui est en relation avec nous, c'est nous pas donner sur guérison, nous pas contrôler, nous pas regarder. C'est pas seulement les pour affecter la terre, pas seulement les pour affecter nous la famille, aussi sur l'effet pour dans le cabar. Pour qui aujourd'hui ça, une maladie qui aujourd'hui est attachée avec nous, qui peut détruire nous, peut détruire nos sociétés, qui a une préparation, qui a une précaution et qui a quelque chose que nous pouvons faire pour protéger sa roue là contre cette maladie là, pour cette raison là. Allah Rabbul Alamin dit pour qui gagne guérison contre toute cette maladie de roue, wa kunu ma'a sadiqin, reste attaché ban awliya Allah, li la vie ban awliya Allah, assister quand peut faire éloge ban awliya Allah, assister quand peut raconter la vie ban awliya Allah, ou pour gagner guérison contre cette maladie qui est grave liété. Mon frère, c'est en islam. Alhamdulillah, nous n'avons aucun doute là dans nos croyances, nos iman. Ors qu'on peut célébrer que Allah so Rasoul, Allah so Wali, so éloge peut faire. Hadith donne nous garantit Allah so rahmat, Allah so barakat descend. Mais l'islam pas voulu qui seulement un temps, deuxième temps qui va assister à une ours, c'est seulement ça mon malaim qui au bénéficié ou profiter. Ours so maksad c'est pas ça. Allah voulait quand on assistait Allah so Wali, so ours, on assiste dans ce mahfil, on assistait sa rahmat, sa barakat, sa bénédiction qui descend. C'est pas seulement les temps, deuxième temps, quand on sortit depuis de là, sa rahmat, sa bénédiction, ça quelque chose là, les toujours là ensemble avec vous. Qui m'a les poils ensemble avec vous? C'est quelque chose que nous écoutons. Un conseil que Allah fin donner. Quand nous fin écouter, nous savons faire des efforts, nous amener en pratique aujourd'hui. Moi pour donner un seul quelque chose et moi tiens l'attention. Qui ça roule là sur maladie aujourd'hui qui quantité de faire ravage. Et pas seulement une personne qui peine à l'éducation, une personne qui est éduquée, une personne qui doit dire, une personne qui peut faire ibadat. Malheureusement, pas capable de prendre précaution et Shaitan peut jouer ce rôle. Un de parmi les maladies que le Coran plaisait l'exemple fin donné. Aujourd'hui, il peut finir nous la vie familiale, la vie conjugale et même qui nos sociétés aujourd'hui peut toujours l'effet de sa maladie là. De parmi quelque chose, c'est nous dire jalousie. Pour moi, mon pays n'a aucun problème. Mon problème, c'est quoi? Où qui fait bien un problème? Aujourd'hui, nos mentalités peuvent venir comme ça.
Je n'ai aucune tension, je n'ai aucun problème. Mon problème, c'est quoi? Je n'ai pas un sommeil qui fait, parce que ou qui fait dans bien, ou qui fait un problème, ça c'est mon problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans sa qualité-là, dans sa petite chose-là. Allah Rabbul Alamin donne l'exemple, c'est comprendre sa jalouserie qui qualité fait ravage si ou pas contrôler. Premier crime qui finit dans la terre. Le Coran fait ressortir un frère peut tuer son frère sans aucune pitié. D'ailleurs, sa raison qui tient là, c'est hasad, jalouserie, rancune. Des garçons d'Adam alayhi salam, Habil, Qabil, c'est l'histoire du Coran fait mentionner. Deuxième exemple du Coran fait mentionner, où il y a surah Yusuf, c'est la meilleure histoire que le Coran fait mentionner. Ben frère peut faire complot, peser des autres frères vivant dans un puits. Raison qui tient là. Qui fait ça? C'est hasad, jalouserie, rancune, fin ina contre son frère. Au regard de qui qualité bassesse de amène ça quelque chose là qu'on pas contrôler. Et si il y a quelque chose qui a gagné, me dit pas fait non, il y a fait hasad à part, puis dichon, puis non, il a gagné. Pas seulement qu'il est affecté au l'écho, qui continue il est affecté au ban ibadat. Bon, termine le hadith qu'Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, anna al hasada, sans qu'un doute hasad, qui qualité fait ravage. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit l'immense ou ban neki ban sabab qui au fin gagné comme ta'akulu an-naru al-hatab comme jifé les bril gros jibois les faire divine lasan comme ça même capable comme montagne ou un neki dont on a amal qui au fin récolter à travers ban ibadat à travers ban bo action mais quand pas fini na contrôle sa maladie qui concerne au roh qui qualité les détruire et les bril tout ou ban neki qui avec autant la peine nous faire le bedjibout en arlot d'un seul saf nous épaules costées, mais nous lesquels ne peuvent pas rester costés. Nous pouvons rester ensemble avec un seul jamaat, mais là aussi nous ne pouvons pas capables de contrôler nous lesquels et dans nous lesquels nous ne pouvons pas capables de protéger contre sa maladie là. Pour sa raison là, Allah fin de l'autre dans le Coran, wa kunu ma'as sadiqin. Sa maladie là, sa guérison côté pour gagner, sa purification ou lesquels côté pour gagner, sa ban qui chose là qui manie les pour enlever depuis dans roue qui roue vin park et quand roue vin park, Allah Rabbul Alamin avait ban farishta, sa maman quand sa roue là sorti depuis dans les Allah subhanahu ange béni et donne sa bonne nouvelle là ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati opak nafs opak roux ton fais effort ton purifie et toi ton fais toi une Pâques maintenant Allah subhanahu farishta vient accueillir sa qualité roux là et donne les bonnes nouvelles qui bonne nouvelle pour toi Allah subhanahu bon banda et Allah ta'ala ce paradis ouvert pour toi Allah rabbul alamin donne le tawfiq qui sa orso biso maqsad quand nous venons à une purification sur l'équerre, nous avons une purification sur roule. Pour l'école, nous prenons beaucoup de quelque chose, des médicaments, des tests nous faisons, des généralistes, nous avons des spécialistes nous regardent, mais pour purification sur roule, c'est des ulama, des awliya Allah, c'est la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous guide spirituel à cause de wakunu ma'as sadiqin, reste attaché avec sa bonne qualité personnalité qui lui donne purification ou l'équerre et au roux quand vous sortez depuis dans sa lémon là, au gain accueille dans sa face comme Allah في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وبن سلكنا من إيمان بي الله gain في يد الله et reste toujours attaché avec ban awliya Allah. आपके बाद साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाए जनाब काजी रशीद साहब ने भी अपने खास अंदाज में नात पेश करने की सआदत हासिल की है सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद वो जो न थे तो कुछ तो कुछ न हो
जहान की जान है, दो जहान है। पढ़ लीजिए सल्ले अला नबीना। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। पढ़िए ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा है आका। के बाद अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, अकीदा है। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगोगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से लो लगी है, पढ़िए ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम। अमल की मेरी असास क्या निदाम के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बती वाली बात है। रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। बस ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम। शेर पे खत बजाऊंगा, आखिरी शेर है। अता किया मुझको दर्द, सबकी बस की बात नहीं है। अमल अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत में, इस करम के कहाँ था काबिल। हाँ मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की पर्दा परवरी है, सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम। बेखुद किए देते हैं, 2 मिनट में बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाब बना दिल में तुझे रख लूं जाने जा, दिल में तुझे रख लूं। पढ़िए
जाना ना इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने बस अपना बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना महशर में भी कह दे और आखिरी शेर बिकॉज ऑफ टाइम पीने को दूंगा पर अर्ज पर शर्त जरा है को तो पी लूंगा पर शर जरा सी है अजमेर का साक़ी हो अजमेर का साक़ी हो कि जो से हो साक़ी हो और बगदाद का मैं खाना अजमेर का साक़ी हो अजमेर का साक़ी और आखिरी शेर आरिफाना शेर क्यों मिलाई थी क्यों आग बढ़ाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना दिल में तुझे रख लूं है जलवे जाना ना। नाज़रीन इस वक्त आप नूर ईमान प्रोग्राम देख रहे हैं जो हाईलैंड्स के खानकाह अशरफिया और गरीब नवाज सोसाइटी की जानिब से इनक़ाद पज़ीर हुआ था। इस तंजीम के मीर कारवां मौलाना जुनैद साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम की निज़ामत संभाली। साउथ अफ्रीका से तशरीफ़ लाए अल्लामा काजी साद दामद बरकातुमानिया ने सुकून किसे कहते हैं इस पर आपने आलिमाना गुफ्तगू फरमाई। We're talking about tasawwuf and sharia. If you are not loyal to a cause, you are suffering from a disease of doubt. You are suffering from a disease of shak. You're suffering from a disease of disloyalty. You don't know, or you haven't drank from the wine, the goblet of love. Neither have you been given the gaze of love. Because if you have been given the gaze of love, if this nigah that came over you, then you would have said something like, "Ye andaz-e hijabana," this look that you have given me over time, right? And now you have sat behind a parda. When am I going to get that look? This is the love that they speak about, the ishq that we speak about. Ba-wafa, ishq wala hota hai. Somebody who is loyal, he is only looking, when am I going to see my beloved next? They say, ba-wafa qurbani dete hai. He gives, if you look at what happened in Karbala, and all of this is based on the concept of love. In tasawwuf, the mashayikh are sitting here, and I'm a dust of their feet. You have something known as aql kulli and aql jazbi.
one that is mahroom or deprived from Allah Rabbul Izzah's mercy or His love. You are doing actions, He's fulfilling His duty to you as your God. Allah subhanahu wa ta'ala, that's His attribute, that I will give you rizq, I'll give you mercy, I'll do all of this. But then you have khas and specific things that you will get from Allah subhanahu wa ta'ala. One that is deprived from that khas gifts, that is a person known as a mahroom person. One that is full of hidayat, is full of nur, that knows how to get drunk, and he's in tune with his beloved. He's perpetually looking. That is known as kulli. The kulli will say that when I will get my beloved's gaze with qurbiyat, with closeness, I want to get close to my beloved. They learned how to fall in love. They are not in the state of doubt. Is zikr for real? Is tasawwuf real? Is the Habib, is ishq real? They will say ishq is jhoot. They will say it's lies. When they listen to a kalam that was written by Bedam Warsi, and if somebody who has never experienced love, he is so aware of the surrounding, like they say a drowning person. You ask a drowning person who is drowning in an ocean, are you hungry? Do you want to eat something? Do you feel like eating something? You think he will answer you? Is he going to feel hunger? The one who is experiencing trauma, the one who is drowning in an ocean, and he's seeking for help, and he's going to ask, you are going to ask him, are you hungry? The answer to that is going to be, he is so conscious of losing his life. He's fighting for his life. So a drowning person, if he's drowning in ishq, he's not going to be observant of anything else other than his beloved. And this is what it comes down to tariqah. That everything that you do from your day to day is only when I'm going to get the gaze of my beloved. And the responsibility is two. One is the one who is going to get the gaze, and the one who is going to give the gaze. You need to have a connection of a heart to heart. That to connect to the awliya Allah, you need to connect to those who are connected to them. And if you are sitting, for example, in the company of great scholars, and the scholars are distracted, and they are busy with whatever thing, you are sitting in their presence, but in a gathering of zikr, the malaika descend, and you are covered in their mercy. But for them to give you that tawajjah, you got to wait until that door opens. And when that door opens, you start, then that fire in you within starts lighting. That means qareeb ho jana. You need to come close to the heart of that one. And when that heart is burning, your heart will start alighting. Like in one condition, remove the doubt. Remove the doubt element, the shak. Remove this ana khayrum min, that I am better. I know more than him. This is a problem that we are finding throughout the world. I've explained this the other day as well, and what I'm finding is there is a big gap between the older generation and the new generation. The young ones are not interested in the deen. The responsibility does not lie with them but with us. With you as elders that are sitting here, you should make every effort to take messages that you get from gatherings like this and give them to your children. The time that is spent with drugs with the youngsters, the time that is spent with Ayyashi, the time that is spent on TikTok and social media platforms, they are going to distance themselves further and further away from the real thing. If they have not experienced ishq, whenever there's a void, whenever there's an emptiness in the heart, shaitan will find a way there. And the older folk, the older people, and I'm appealing to you, with myself, I'm taking guidance from this as well. Qu anfusakum, that you need to save yourself. Yes, you've done that. How? You've come to this gathering. You're sitting and making respect and you're showing adab.
you're honoring the ulama, you're honoring the mashayikh, you're going to the mazar, you're going to Karbala, you're going everywhere. Lekin you are not passing that on to your next generation. You are not inspiring them. In your own house, there's fighting going on. There's bickering going on. There's unhappiness going on. There's continuous arguing. That sukoon is not coming into your home. Why? And this stems from your own inability. There's something wrong. Because if you are truly a lover, man amila salihan min dhakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. That the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, whether you're a male and female, when you start indulging in man amila salihan and righteous actions, then you will have a good life. But if you are seeing a society that is separating, where the youth is going in one direction and the older folk are going, they're becoming lesser and lesser and lesser, and the argument is, oh, we don't understand language. Do not give the excuse that you don't understand Urdu. It is the willingness from within you of wanting to share and love to that extent, where you are such a loyal servant that they must smell Khaja Sahab from you. They must feel Ghaus al-Azam from you. They must feel Mahdum Ashraf Jahangir from you. They got to feel wilayat within you. They must feel the gaze that they are looking at you. You need to reflect it. You cannot sit down on your own and say, why the Quran tells you, Qu anfusakum wa ahlikum nara. You need to, it's your responsibility is yours. It is not their responsibility. It is not the ulama responsibility to save your children from the fire of Jahannam. They are going to stand, wallahi, on Yawm al-Qiyamah, alone. Yes, we're going to hold on to daman, we're going to stand under some umbrellas, we're going to stand with our imams. We know our aqidah. These are all meant to enliven our society, to rekindle that spark of iman, that little flame that's left, that is being challenged from every angle. And the responsibility lies on you who are here, because Allah has given you the tawfiq and guidance to come to this place. That you are now da'is, that you got to go out now and take this message and spread this message out. How am I going to save my home and my children and whoever I know? Discuss it with friends. Tell them about programs like this. Tell them about dhikr. Tell them about this. Give nasiha. Not be holier than thou. Don't act like Jibreel came to you and gave you a revelation. No, you need to be humble. Say, I learned this here. Join me with this. Join me with this. Come. Share that passion. Share that passion. This place should be beaming with youngsters. With the work that Maulana Junaid is doing, I was so impressed with the clinic. And I met few doctors. And alhamdulillah, the work is carrying on and it will carry on. But the responsibility is on you now to go and bring at least 3 or 4 other people and say, by this work taking place. Today is a Sunday. And everybody should be active and enjoying this type of things. And this is what it comes down to, loyalty. One is loyalty and the other one is disloyalty. And disloyalty stems from doubt. Hence the Quran in Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. The opening line, you haven't even read the book. You haven't even read the book. Lekin Allah says this book has got no doubts. You must have no doubt. So in Ishq, when you want to enter into this thing, you will not know you are entering into it, because Ishq is a state. It's like hunger, you just drown. But lekin it stems from coming first to empty that vessel inside of you. Remove that doubt. Remove that judgment of anybody. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam, Shama-e baz mein hidayat pe lakhon salam. मिली अजदाद से मुझको विलाए हजरत सिमनानी, मिली अजदाद से मुझको विलाए हजरत सिमनानी, रहे ताहशर
नस्लों पर अताए हजरत इमनानी रहे ताशर नस्लों पर अताए हजरत इमनानी बताऊं क्या कि होता है मेरा सर फख्र से ऊंचा बताऊं क्या कि होता है मेरा सर फख्र से ऊंचा मुझे जब लोग कहते हैं गदाए हज़रत इमनानी मुझे जब लोग कहते हैं गदाए हज़रत इमनानी नहीं भाती ज़माने में निगाहों को हुए हैं जानो दिल ऐसे फिदाए हज़रत इमनानी हुए हैं जानो दिल ऐसे फिदाए हज़रत इमनानी मुझे दर दर भटकने से बचाया उनकी निस्बत ने मुझे दर दर भटकने से बचाया उनकी निस्बत ने खुदा का शुक्र है जिसने मिलाए हज़रत इमनानी खुदा का शुक्र है जिसने मिलाए हज़रत इमनानी उसी खुशबख्त बंदे पर बका के राज खुलते हैं उसी खुशबख्त बंदे पर बका के राज खुलते हैं जो हो जाए दिलो जान से फिदाए हज़रत इमनानी जो हो जाए दिलो जान से फिदाए हज़रत इमनानी। और आज मॉरिशस अल्हम्दुलिल्लाह इस कुर्सी पाक के हवाले से चमक रहा है दमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायर कहता है बहारे हज़रत इमनानी जिधर देखो जहाँ देखो बहारे हज़रत इमनानी जिधर देखो जहाँ देखो कुछ ऐसी रंग लाई है दुआए हज़रत इमनानी कुछ ऐसी रंग लाई है दुआए हज़रत इमनानी। महफिल के रूह रवां हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैयद सलमान अशरफुल जीलानी दामद बरकतुहू मालिया ने सूरा अल-फज्र की आयत 27 की रोशनी में नफ्स के हवाले से ये पुरतासीर बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ऐ मुतमइन नफ्स सेटिस्फाइड नफ्स इरजिई इला रब्बिकी चल लौट चल चलिया
अपने रब की तरफ। राज़ियतम मर्ज़िया, जो लौटने में कंडीशन रहे वो ये कि तू रब से राजी और रब तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, लौटने के बाद क्या कर, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो बंदे तो सब हैं नहीं, स्पेशल महबूबों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में इंटर कर जा, मेरे जन्नत में दाखिल हो जा। अभी हज़रत मौलाना फैयाज साहब ने जाते जाते इससे पहले कुछ इसी आयत की तिलावत की, तो मैंने इसी को अपना सरनामा बयान बना लिया। ये नफ्स क्या चीज़ है जिसको खिताब किया है और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब किया है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो इसमें सबसे पहले तो उनका एतराज़ ख़त्म हो गया जो ये कहें कि या के ज़रिए किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए, या के ज़रिए किसी गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा को नहीं बुलाना चाहिए। मसलन या गौस न कहो, या गरीब नवाज न कहो, या मखदूम अशरफ न कहो, उनसे कहो कि तुम ना कहो मगर अल्लाह तो कह रहा है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जो भी नफ्स मुतमइन्ना है उसे मोहब्बत से आप इस्तिगासा भी दे सकते हैं, बुला भी सकते हैं, पुकार भी सकते हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। मगर थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये नफ्स क्या है। नफ्स जानते हैं, ये जो आप उर्से पाक में आए हैं, मौलाना जुनैद साहब किबला की दावत पर आपके दिमाग में ये रहा कि मुझे उर्स में जाना है, पहुंचना है, इरादा बना, घर से निकले, चले आए, बैठ गए, शिरकत कर रहे हैं, तकरीरें सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बिजी हैं। ये कौन तुमको लेके आया है? इस महफिल में लाया कौन? आप समझ रहे गाड़ी लाई है, कार लाई है? नहीं, कार को तो आप खुद लाए, आपको कौन लाया है? जब आपने उर्स में आने का इरादा किया, रगबत की, इंटरेस्टेड हुए और आ गए, जानते हो कौन लाया? नफ्स लेके आया है। यही नफ्स हमें मस्जिद ले जाता है, यही नफ्स हमें कब्रिस्तान ले जाता है, यही नफ्स हमें जिक्र में, फिक्र में ले जाता है, यही नफ्स हमें पाकीज़ा महफिल में ले जाता है, यही नफ्स मुर्शिदों के यहाँ ले जाता है, यही नफ्स बगदाद ले जाता है, यही नफ्स अजमेर ले जाता है, यही नफ्स मदीना ले जाता है, यही नफ्स काबा को जाता है, यही नफ्स गुंबदे खजरा को जाता है, यही नफ्स अच्छा करवाता है, यही नफ्स अच्छी सोच रखता है। ये सारा काम कौन करता है? नफ्स। चाहत, रग़बत की जो कैफियत है, जो डिसाइड करता है जाने के लिए, वो नफ्स करता है। तो आप यहाँ आए हैं तो कौन लेके आया है? नफ्स लेके आया है। किसी ने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उर्स में शिरकत नहीं करूंगा, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, मैं बियर बार जाऊंगा, मैं कज़िनो जाऊंगा, मैं प्ले ग्राउंड जाऊंगा, मैं दिस एंड दैट जाऊंगा,
मैं सी साइड जाऊंगा, मैं इंजॉय करूंगा, मैं बॉलीवुड की तरफ जाऊंगा, मैं हॉलीवुड जाऊंगा, मैं रक्सो सुरूर की महफिल में जाऊंगा, मैं डांस क्लब में जाऊंगा। कौन ले जा रहा है? नफ्स। नफ्स तुझे मस्जिद भी ले जाता है और नफ्स तुम्हें शराब खाने भी ले जाता है। यही नफ्स नमाज पढ़वाता है और यही नफ्स सजदों से दूर रखता है। यही नफ्स जामे मोहब्बत पिलाता है और यही नफ्स सुर्ख शराब लबों से लगवाता है। यही नफ्स खानकाह में रियाजत और मुजाहिदा करता है और यही नफ्स जो है वो खानकाह छोड़ करके बुतकदों को आबाद करता है। यही नफ्स है जिसने नमरूद से, शद्दाद से, हामान से, यजीद से खुबासत और जुल्म सितम का काम लिया और यही नफ्स है जो हुसैन को लेकर के करबला में आता है, अपना खानदान कटवाता है, इस्लाम बचाता है। यही नफ्स जीलान छोड़वा करके बगदाद तक इस्लाम की खिदमत करता है। यही नफ्स संजर की वादियों को छोड़ करके अजमेर की धरती का ताजदार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नफ्स सब कुछ छोड़ करके अब्दुल अलीम सिद्दीकी बनाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। यही नफ्स पीर जमाल बनाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही नफ्स शैतान भी बनाता है। हक है, हक। ये नफ्स है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसका मतलब कि नफ्स ये भी करता है, नफ्स वो भी करता है, तो इसका मतलब नफ्स कई टाइप का है। बेशक, बेशक। इसका यही मतलब हुआ ना। नेगेटिव भी जाता है, पॉजिटिव भी जाता है, खैर भी करता है, शर भी करता है, अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। इसका मतलब नफ्स कई किस्में हैं और सूफिया के यहाँ चले जाएं तो बहुत सी किस्में मिलेंगी। मैं सबको कम कर दूंगा, इतना टाइम नहीं है, इसलिए कि वाकई आप देर में आए हैं। जो देर में आए हैं ये भी नफ्स ने करवाया है। ठीक है, तो नफ्स जो है, जो तुम्हें कैसे पहचानोगे ये कि विच टाइप नफ्स इज वर्किंग इन योर बॉडी, इन योर थॉट, इन योर हार्ट, किस टाइप का नफ्स काम कर रहा है, तो पहचान बता दूं। आज पहचान लेके चले जाओ और पहचान जाओ, क्योंकि पहचानना बहुत जरूरी है। अपने आप को पहचान जाओगे तो खुदा को पहचान जाओगे। इसलिए पहले दूसरों को पहचानने के चक्कर में लोग टाइम सारा बर्बाद कर दे रहे हैं। डोंट लुक एनी अदर, लुक इनटू योरसेल्फ। अपने अंदर देखो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जब तुम्हारा दिल गुनाहों को करने के लिए बेताब हो, जब दिल चाहे कि ज़िना के अड्डों को आबाद करें, दिल जो है वो इंटरेस्टेड होने लगे, तो देखो अपने नफ्स को कि दिल चाह क्या रहा है। उसी वक्त वॉच करो कि व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ योर हार्ट। तुम्हारे दिल की दिलचस्पी किधर जा रही है? अगर गुनाहों की तरफ जा रही है, इर्तिकाबे कबायर की तरफ जा रही है, हराम और फवाहिशात और मुनकरात की तरफ तुम्हारा दिल रग़बत कर रहा है, तो समझ जाओ कि ये मेरा नफ्स नफ्से अम्मारा बन रहा है। क्या बन रहा है? अम्मारा, जो गुनाहों की तरफ इनकरेज करे और जो गुनाहों की तरफ एक्टिव करे, जो गुनाहों की तरफ एक्शन लेना चाहे,
और जो गुनाहों की एक्टिविटी की तरफ जाना चाहे तो उस नफ्स को पहचानो। तो उसकी पहचान क्या है? नफ्से अम्मारा, जो गुनाहों की हौसला अफजाई और इंटरेस्ट करे, वो नफ्से। तो जैसे ही ये करे, जैसे ही फील करो कि गुनाह करने की तबीयत चाह रही है, समझ जाओ कि नफ्से अम्मारा एक्टिव हो गया है, वायरस इज एक्टिव। अब एंटी वायरस डालना पड़ेगा। तो वायरस एक्टिव हो गया, फौरन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बिफोर द डैमेज। इससे पहले कि कुछ कर बैठो तो डैमेज से पहले ही बच गए आप। अगर फाइंड आउट हो गया, वायरस पहले ही आ गया, तो आपकी अंदर की सारी फाइल ले उड़े। उससे पहले ही एंटीवायरस अगर एक्टिव हो जाए तो फिर वो पकड़ जाएगा वायरस और जंग क्लीन कर दो, सारे जंग खत्म हो जाएंगे। अब एक तो मरहला ये है कि पहले ही, इसलिए ना। और दूसरा मरहला, तकरीर बड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि आप देर में आए हैं। तो बाय द वे कर लिया, गुनाह में मुलविस हो गए, इच्छा शक्ति, प्रोटेक्शन पावर आपका लड़ने का, जैसे एंटीऑक्सीडेंट क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं है कि आप मर्ज का मुकाबला कर सके। हो गया फीवर, हो गया इन्फ्लुएंजा, पहले तो आप प्रिकॉशन लिए, जुकाम होने ही नहीं पाया, लेकिन जब हो गया, चूंकि इम्यूनिटी कमजोर थी, इम्यूनिटी स्पिरिचुअल बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर थी, तो मौसम इफेक्टेड हो गया। अब इफेक्टेड हो गया, कर बैठे, हराम खा लिया, हराम बोल दिया, हराम कर लिया, हराम सीख लिया, हराम जान लिया। अब क्या कर लिया? तो हराम जब कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा बंद नहीं किया। अभी एक बहुत पावरफुल स्टेज, एक तो वो थी कि अम्मारों को पहचान लो, और एक बहुत पावरफुल स्टेज ये है कि अगर गुनाह हो गया है, अगर गुनाह हो गया है तो यू फील गिल्टी, यू फील शेम इन योरसेल्फ। अपने अंदर शर्म महसूस करो उस गुनाह की वजह से, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है अगर गुनाह में शर्मिंदगी है तो समझ जाओ कि ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानी है। इसका मतलब तुम्हारा दिल अभी डैमेज नहीं हुआ है, अभी हिदायत का पानी इस पे चल सकता है और हिदायत की खेती हो सकती है। तो क्या करें? तौबा करें, गिल्टी फील करने के बाद। इसलिए, और तौबा इतना बड़ा स्टेटस है, शायद ये मोमिन गुनहगारों के हिस्से में आया है। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। मगर गिल्टी फील करने का मतलब नहीं, तौबा का मतलब ये नहीं है ओके जैसे आप थैंक यू, सॉरी, ये नहीं है तौबा। पूरा पूरा माल हड़प दिया, कहा सॉरी, किसी की पूरी जान ले लिया, कहा सॉरी, पूरा ब्लीडिंग ब्लड बाथ कर दिया, और बाद में 30 साल के बाद इंटरनेशनल ताकतें कहती हैं सॉरी, वेपन डिस्ट्रक्शन नहीं थे सॉरी, इराक में नहीं थे सॉरी, कलहों को मार डाला फिर कहो सॉरी। नहीं, ये सॉरी से काम नहीं चलेगा। क्या करो? पूरा वापस जाओ, तौबा भी करो और पनिशमेंट फील करो,
और अपने आप को पनिश करो, नफ्स को मारो, मुजाहिदा करो। अब आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। आजाद बहता हुआ सेब जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, क्या कहना, बड़ा प्यारा इशारा, वाह वाह। और उसको उठा के खा लिया, जबकि किसी के घर से नहीं लिया था, बेशक सही है। किसी की शॉप से भी नहीं उठाया था। एक फ्रीडम एप्पल, एक आजाद सेब बह रहा है नदी में, उठाया खा लिया। उन्होंने सोचा कि खा तो लिया है, क्या पता लगाया हु इज ऑनर, इसका कौन मालिक है? ओके, गिल्टी फील, ये नफ्स का वो दर्जा, गिल्टी फील हो रहा है, शर्म महसूस हो रही है कि मगर मैंने बगैर पूछे किसी का एक सेब खा लिया है। एक सेब खाने में जब गिल्टी फील करते हैं, लोग पूरा गार्डन खा जाएं तो कुछ नहीं करते हैं, सारी डेग खा जाएं तो कुछ नहीं करते हैं, पूरी प्रॉपर्टी खा जाते हैं, कुछ नहीं करते, मगर फील किया। दुनिया कहती है उधर बहो जिधर की धारा हो, जिधर की धार वहां बहो, उधर जाओ जिधर जिधर धार जा रही है। क्या मतलब उसका? फ्लो जा रहा है नदी का, उधर ही चलना चाहिए, ये दुनिया का कॉन्सेप्ट है। मगर नहीं, ये तौबा का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। वहां जाओ, जाके जड़ पकड़ो, कहां का सेब था, फाइंड आउट, पता लगाओ, ये खा लिया है इससे पहले कि वो डाइजेस्ट होके ब्लड में सर्कुलेट हो जाए और हाथों पैरों और दिमागों में वो बैड ब्लड पहुंच जाए, और नस्ल ऐसी कि यो ताहिरुकुम ततहीरा, पाक कर दिया गया है। इससे पहले कि वो नापाक खून पार्ट ऑफ बॉडी बन करके बुरे तौर पर एक्टिंग करे, एक्शन लो, इससे पहले कि वो डाइजेस्ट हो, फौरन उधर निकल गए जिधर से सेब बहता हुआ आ रहा था। गार्डन में पहुंचे सेब के तो देखा कि एक रिवर है जो साइड से निकल रहा है, और सेब की ट्रीज की ब्रांचेस जो हैं वो लहरों पर है, उसी में किसी लहर के उठने से वो सेब टूट करके उसी रिवर में बह गया। कहा ये ओके, ये सी गार्डन का एप्पल है, ओके ओके ओके, आई एम कन्फर्म, आई हैव कन्फर्म्ड। अंदर हुए, इंटर हुए अंदर, देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी सूरत, वेरी वेरी नूरानी सूरत, अंदर दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उन्होंने सोचा होगा ओके, मार्केटिंग, नमाज भी पढ़ते थे बुजुर्ग, अपने बाग में बैठते थे, सेब को पर देते भी थे, सेल भी करते थे। सोचा होगा कोई कस्टमर आया होगा, कस्टमर है तो सलाम किया। कहा क्यों आए? कहा हुजूर मैंने गालिबन आपके बाग का सेब, कंसंट्रेट प्लीज, इधर तवज्जो रखिएगा, आपके बाग का सेब मैंने खा लिया और आपके इजाजत नामे की भी जरूरत महसूस नहीं की, बगैर इजाजत के खा लिया, विदाउट एनी परमिशन। तो कहा ओके। उन्होंने सोचा कि ओके, रोज मेरे गार्डन में तो ताजिर और बिजनेसमैन आते थे, आज पहली बार मेरे गार्डन में कोई मुत्तकी आया है, कोई परहेजगार आया है। कहा ओके ठीक है, खा लिया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, खा लिया, आपने बता दिया ओके। कहा नो, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, माफ मत करिए, मैं उतनी ही मेहनत करना चाहता हूं, कुछ मुझे पनिश करिए इससे पहले कि अल्लाह पनिश करे।
दुनिया में मुझे कुछ पनिश करिए, कुछ काम लीजिए, कुछ मेहनत करवाइए ताकि उस सेब का हक अदा हो जाए। ओके, अरे बाप रे, वो इसका मतलब 100% ये कोई मुत्तकी ही है, नॉट एक्टिंग, रियल मुत्तकी। क्योंकि अब तो मुत्तकी की एक्टिंग भी हो रही है ना, एक्टिंग मुत्तकी भी है, उस पर फिर कभी इंशाअल्लाह, वो एक्टर मुत्तकी के बारे में मैं फिर कभी डिटेल से दूंगा। तो खाया तो कहा ठीक है, तो फिर कहा फिर चेक करें इसको कि रियल मुत्तकी है कि नहीं, क्योंकि रियल मुत्तकी होते हैं तब टिकते हैं, नहीं सैक्रिफाइस के टाइम भाग जाते हैं। तो पूछा गया ओके अगर तुम ये चाहते हो पनिशमेंट तो सुनो, मेरी एक लड़की है, वाकया आपने सुना है लेकिन आयत से रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि समझ में आए। मेरी एक लड़की है, अंधी है, लूली है, बहरी है, लंगड़ी है, लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, माजूर, पैरालाइज टाइप, तो तुम शादी करोगे उससे? कहा हुजूर बस सेब का माफ हो जाए मैं तैयार हूं, वो बस वो हराम का इफेक्ट मेरे बदन से निकल जाए मैं तैयार हूं। इसका मतलब ये ओके ये रियल मुत्तकी है। शादी हो गई, कमरे में गए, फर्स्ट नाइट। आपसे पूछा जाए, आपके माँ बाप अगर कह दें मार्शेस में तो खैर जो नहीं कहते वो भी करते हैं, जो करते हैं वो भी कहते हैं, यहाँ तो शादी करके साल भर साथ ही में रहते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर करते ही क्यों हैं? मंगनी के बाद फिर साथ में रहना, टुगेदर, टॉकिंग, और सारी टॉकिंग ख़त्म हो जाती है। फिर जब शादी आती है तो कुछ टॉकिंग बचती नहीं, सिर्फ फाइटिंग बचती है। इसलिए टॉकिंग बची रहनी चाहिए। शादी मंगनी करो, फटाक से शादी करो ताकि कुछ बचा रहे। जब बचा रहेगा तो रोमांस बचा रहेगा, जब सब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ लड़ाई बची रहेगी। ठीक है, ये टेक्निकल बात कह दी मैंने। खैर, तो फर्स्ट नाइट को जैसे गए तो उन्होंने कहा जाने में तरीका यही है, बीवी को भी सलाम कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्द है तो बहुत ब्रेव है उसको सलाम नहीं करना चाहिए। हजरत गए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो जो बहरा होता है ना सुनता नहीं है, ठीक है ना, जो बहरा होता है वो क्या होता है, सुनता नहीं है, तभी तो बहरा है। तो कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम कहा है? हजरत ने तो कहा था कि बहरा है। बहरे को क्या कहेंगे इंग्लिश में हजरत? डेफ। हाँ वही है, मैं अक्सर कहता हूँ ज़बान यारमी तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। मेरे यार की ज़बान तुर्की है, मुझे तुर्की आती नहीं है। तो बहरा डेफ है। तो इसने तो जवाब दिया, आंसर दिया वालेकुम अस्सलाम। और करीब हुए तो रिस्पेक्ट में अपने शौहर की खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। ओके, पैर भी सलामत है, ये तो लंगड़ी भी नहीं है। और करीब हुए, और करीब। अच्छा ये भी एक पॉइंट याद रखो, उनको पहले मालूम था बहरा है, फिर भी सलाम किया। बहरा है फिर भी सलाम किया, मतलब सामने वाले का रिप्लाई नहीं देखेंगे, हम अपनी नेकी देखेंगे। आप अपना काम करो। उसके बाद उसने कहा, करीब गए, जब देखा चेहरा देखा तो ओह मोस्ट ब्यूटीफुल, खूबसूरती, ऐसा लगता है कि पैराडाइज की कोई हूर आ गई हो। कहा रे गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटीफुल, ओके। कहो ओके, आई मिस्ड रूम नंबर, शायद मैं रॉन्ग नंबर लग गया है। फौरन भागे। मुत्तकी भागता है ना उससे, भागने वाले का नाम मुत्तकी है। तो भागे, फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागे। तो भागे, जब भागे तो फिर पीछे पीछे फादर गैलरी में मिल गए। अरे कहाँ, इस कमरे से निकल गए, कहाँ भागेगा तो आदमी जो एक्टिव रहेगा ज़्यादा। कहाँ जा रहे हो?
कहा हुजूर आपने तो कहा था कि लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, वो तो सब कुछ सलामत है, ब्यूटीफुल भी है, लेग भी सही है, हाथ भी सही है, पैर भी सही है, जबान भी सही है, कान भी सही है, सलाम भी किया। हाँ, कहा मैंने दुनिया के एतबार से कहा था। दुनिया में वो आदमी ब्लाइंड माना जाता है जो सिर्फ अच्छाई को देखता है और बुराई से नजर फेर लेता है। मेरी बेटी वो इस माने में अंधी है कि कुछ उसने शरीयत के खिलाफ कभी देखा नहीं, शरीयत के खिलाफ कभी सुना नहीं, शरीयत के खिलाफ चली नहीं, शरीयत के खिलाफ हिली नहीं, एक एक एक्टिविटी उसकी शरीयत के मुताबिक है, इसलिए वो लूली लंगड़ी है। हकीकत में उसकी सीरत तो फातिमा ज़हरा की सीरत है। तो देखा आपने, तो गिल्टी फील किया, इससे यह भी नतीजा मिला कि अगर गिल्टी फील करके अपने गुनाहों को मिटाने के लिए चलोगे तो नुकसान नहीं होगा। ऐसी बीवी शायद न मिलती जो तौबा के बाद मिल गई है। ये नफ्से लव्वामा क्या है? नफ्से लव्वामा, नफ्से लव्वामा हो गया। तो जो इस क्वालिटी का नफ्स होता है वो मुजाहिदात और रियाजात और सोहबत और औलिया अल्लाह के बारगाह में रहने से जो हासिल होता है, उसके लिए क्या जानते हो क्या है? जाते सब हैं, जाना और है, बुलाया जाना और है। जो चाहेगा वो भी जाएगा। दुनिया से अगर आप जाना चाहते हैं तो भी जाएंगे, और नहीं जाना चाहते तो भी जाएंगे। चाहे जितना बड़ा हॉस्पिटल खोल लो, डॉक्टर इलाज करते करते चला जाता है। तो चाहे आप चाहो तब भी जाओगे, और चाहे ना चाहो तब भी जाओगे। तो जाना है, मगर जाना और है और बुलाया जाना और है। जो बुलाया जाता है वो स्पेशल होता है। तो अब अगर नफ्स गौसे आजम की तरह है, अगर नफ्स गरीब नवाज की तरह है, अगर नफ्स मखदूम अशरफ सिमनानी की तरह है, एक मुतमईन नफ्स है, एक पाकीज़ा नफ्स है, तो वो जाता ही नहीं है, उसे बुलाया जाता है। अपने मौला की तरफ से दावत मिलती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी। ऐ मुतमईन नफ्स, पलटा अपने महबूब अल्लाह की तरफ। इस हालत में, इस लिबास में आ कि तू अल्लाह से राजी हो और अल्लाह तुझसे राजी हो, और आजा मेरे महबूबों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तुझे जन्नत की तरफ नहीं देखना, जन्नत तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम्हारे इंतजार कर रही है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मिलके पढ़ते हैं। तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान कलंदरी। जरा ऊंची आवाज़ पढ़िए। तेरी शान शान कलंदरी, तेरी शान शान कलंदरी। तू बड़ा नवाज है, तू बड़ा ख्वाजा, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान कलंदरी, हमें तूने अपना बना दिया, हमें तो जहां से बचा दिया। तेरा दस्ते जूदो दराज है, क्योंकि तू बड़ा, पढ़िए, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान
निशान कलम। आशिकों के लिए ये शेर है। तेरे जिक्र के तेरे आस्ताने कुमले, यही आशिकों की नमाज है, ये आशिकों की नमाज है। क्योंकि तू बड़ा गरीब नवाज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान करो मुझ पर मेहरबानी, मेरे मखदूम करो मुझ पर मेहरबानी। पढ़िए मेरे मखदूम समनानी, तुम्हारी है जहाँ बानी, मेरे मखदूम समनानी। तलाशे हक ताला में हुकूमत तर्क फरमा कर, हुए महबूब यज़दानी, हुए महबूब यज़दानी। बोलो मेरे मखदूम समनानी। हजारों गम के मारों को मिली राहत तेरे दर से, तेरा दरबार लासानी, तेरा दरबार लासानी। मेरे मखदूम समनानी, मेरे मखदूम। आखिरी शेर है। मरीजों गम के मारों की मुसीबत करता है। मरीजों गम के मारों की मुसीबत दूर करता है, तेरा मुश्किल कुशा पानी, मुश्किल कुशा पानी। मेरे मखदूम समना। आखिरी शेर। शहे ख्वाजा के सदक़े में खुदा रा कर भी दीजिए हर मुनव्वर की परेशानी, मुनव्वर की परेशानी। बोलो मेरे मखदूम समनानी, मेरे मखदूम समनानी, मेरे मखदूम। और आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद खालिद अशरफ दामद बरकतुमालिया ने तबर्रुकन दिल के हवाले से ये चंद बातें बताईं। आप कान से सुनते हो, लेकिन एक ऐसा जगह है आपके जिस्म में ना, उस पर आना चाहिए। अगर वो क्लियर है, साफ है, तब तो वहाँ रुकेगा वो मामला। नहीं तो दो कान अल्लाह ने दिया है, इधर से सुनते हैं और इसी महफिल के बाहर जाते जाते इधर से निकल जाएगा। अब यहाँ तमाम उलमा मशाइख आपको चैलेंज पे चैलेंज करेंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसलिए आया ही नहीं दिल में, करोगे क्या? दिल तो तेरा काला है। अब मामला क्या है, इस दिल को साफ कर लो। अगर ये साफ हो गया तो ये तमाम चीजें अंदर आ जाएंगी। उसके लिए मेहनत करना होगा और हमें कुर्बान जाएं ये औलिया अल्लाह पर, बुजुर्गान दीन पर। उन्होंने बतलाया एक तरीका है इसके भी साफ करने का। आपका लिबास गंदा हो जाए आप धो डालें, घर गंदा हो जाए वाइट वॉश करा लें, दिल गंदा हो तो कैसे साफ करें? कोई तरीका तो है नहीं कि बाईपास सर्जरी कराइए, निकालिए, धोइए, अंदर डाल दीजिए। एक तरीका है, अल्लाह वालों ने हमें बताया ये इसका तरीका है साफ करने का। तो थोड़ी देर के लिए वो तरीका आपको सीखना होगा और परफेक्ट सीखने के लिए जरूरी है कि इसको बार बार किया जाए। रिपीटिशन नहीं होगा तो आपका काम नहीं होना है। आप किसी भी उसमें चले जाइए, मार्शल आर्ट सीखिए,
आपने किताबें पढ़ ली, सुन लिया, उसने सामने टीचर ने खूब सुनाया, अच्छा सुनाया, बहुत बेहतरीन सुनाया, बड़ी अच्छी ज़बान में सुनाया, लेकिन जब मैदान में आओगे तो फेल हो जाओगे, पहले ही पंच में आप आउट हो जाओगे। इसलिए कि आपको डिफेंड करने का तरीका मालूम ही नहीं है, पढ़ा जरूर है। अब उस चीज को मेहनत करने की जरूरत है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सना, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सना। नाजरीन, हाईलैंड्स के खानकाह अशरफिया और गरीब नवाज सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा सालाना उर्स औलिया सलातुस्सलाम और दुआ से अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी बिगड़ी बना दो और गुनाह सब बख्शवा दो, जंग सीने से मिटा दो और दिल को जगमगा दो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावत हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, रुख से पर्दे को हटा दो, जलवाए ज़ेबा दिखा दो, कैद गम से अब छुड़ा दो, मुझको मौला से मिला दो, ये अली में खफ्ता किस्मत थाम कर दामाने रहमत मांगता है अपनी हाजत, बाज़ुओं बाबे इजाबत, या नबी सलाम, या रसूल सलाम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाति व बादिल ममात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिका बादशाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जो कुछ भी हम सब से हो सका
तेरा ज़िक्र किया, तेरे महबूबीन का ज़िक्र किया। इस महफ़िल का एहतमाम किया गया है, इंसराम किया गया है मौला, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कोई ख़ता, कोई लग़्ज़िश, कोई बेअदबी हो गई हो मौला, अपनी रहीमी और करीमी के सदक़े में माफ़ फरमा। हौसला अता फरमा, अज़्म मुसम्मम अता फरमा, ताकत व क़ुव्वत अता फरमा। मौला हम सबको एक बना, हम सबको नेक बना, हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी हुसैनी मुसलमान बना। मौला हम सबको इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ह्यूमैनिटी की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मॉरिशस जैसे खूबसूरत मुल्क की खूबसूरती को कायम और दायम फरमा। इस मुल्क में अमन अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून अता फरमा, तरक्की अता फरमा, सबको कामयाबी अता फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला मुहम्मद। अल्लाहु 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم